Screen is good. Very good. Chalo. So we are continuing with our vectors. So last class I discussed some important points. The first point which I discussed in last class was scalar and vector difference. Scalar versus vector. I told in scalar it has only magnitude and the addition is normal addition. We can say algebraic addition. Algebraic. Algebraic addition. Algebraic addition means 1 plus 2 becomes 3 जो आप बचपन से पढ़ते हैं. That is algebraic addition. But in vectors I told it has magnitude, it has direction, but it has one more thing. It follow vector law of addition. आज हम ये एडिशन का थोड़ा डिस्कशन करेंगे. I told that current and pressure I and P, current and pressure have magnitude and direction, but current and pressure don't follow vector's law of addition. That's why current and pressure are scalar, right? Okay. Now then we discuss representation of vector. Representation of vector. When I told about representation of vector, I told in 2 points. First point I told about polar form. Second I told about Cartesian form. Right? Polar form and Cartesian form. Polar form कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम एरो से डिनोट करते हैं, इसको फेजर बोलते हैं. फेजर. Okay, increase. I enlarge it a bit. Phasor form, how we represent polar form with help of one phasor. Like suppose I said 2 Newton at 30 degree. So तो फेजर होगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. One is Cartesian form. Cartesian form is I convert this phasor into Cartesian x and y. So I take what 2 cos 30 I cap plus 2 sin 30 j cap. This is known as x component and this is known as y component. And this is known as Cartesian form and this is known as polar form, also known as phasor form. जिसमें फेजर होता है और एंगल होता है. यहां तक कितनों को याद है? हाउ मेनी रिमेंबर दिस? एक बच्चा बोल रहा था सर अगले दिन तक भूल जाते हैं सब. भूले तो नहीं, चलो सबको याद है. वेरी गुड. चलो. So now resultant of a vector. Resultant of a vector is also known as addition of vectors. जो मैं आपको कल कंक्लूजन में बताया था. I taught you while concluding my class. I told there are two vectors. Vector A is equal to 2i plus 3j and vector B is equal to 4i minus 2j. If I want to find resultant of a vector, I'll add vector A plus vector B become what? 6i minus plus j. I just add individually x and y. But I told by this I can calculate a plus b. Okay. Now when I am having vectors in instead of Cartesian form, I have vector in polar form. Suppose I have two vectors.
Suppose this is my vector A and this is my vector B, and the angle between them is theta. See now here I am getting angle between two. I am getting angle between two vectors. Now resultant, how I'll calculate resultant? Vector A plus vector B if I want to find. Suppose the vector C is equal to vector A plus vector B. Now I can calculate magnitude and direction. Magnitude I denote by without arrow. So magnitude will be what? Under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. I give you some example. Suppose I vector A equal to 2 and vector B is equal to 2, or suppose I take 4 and angle between them is 60 degree. Now if I want to find resultant of these two vectors, that will be what? Under root of this square A square plus B square plus 2 into 4 into cos 60. Angle, remember, it is between two vectors. The angle is between two vectors. Under root of 20 plus this cos 60 is 1 by 2. 2 into 8 upon 1 by 2. This will get cut. Become what? Under root 28 becomes 2 root 7. कितनों को समझ में आया? How many understood this? This is how we calculate resultant in polar form. I'll again repeat. Now students, take a question. Suppose I have two vectors, vector A and vector B. Suppose this is 5 and this is 5. The angle between them is, both are 5, 60 degree. Can you find the magnitude of resultant? Magnitude of resultant. Magnitude of resultant. Can you please find the magnitude of resultant? What will be the formula? You just take this formula. Under root of A square plus B square plus 2 AB cos 60. Cos 60 becomes 1 by 2. Becomes under root of 75. 25 plus 25 plus 25 is equal to 5 root 3. Root 75 is 5 root 3. Easy, right? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Am I audible to you all? आवाज आ रही है आपको अच्छे से? Yes. Okay, good. चलो ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, ऑल क्लियर. चलो अब इसमें थोड़ा और डीप जाते हैं. लेट्स गो मोर डीप इन दिस कॉन्सेप्ट. Okay. Now, see, when we have vectors in both of the forms, one form is my Cartesian. This is very easy to find resultant vector, right? But when I am in phasor form, it becomes quite tough. It becomes quite tough to find the direction of resultant vector. See now, suppose I take for example one more question. Suppose this is a vector having 4. This is suppose 45 degree, and this is my this 4 root 2, and this is, sorry, this is
4 3 and this is suppose 3 root 2. Now I want to find resultant. I can calculate magnitude. Now how to calculate direction? See, first I will define a vector. This is A and this is B. I will write C now. I'll take angle of resultant. I'll take angle of resultant. See now, both A and B are going in this direction. तो resultant दोनों के बीच में होगा कहीं. Resultant दोनों के कहाँ पे होगा? बीच में होगा. Resultant दोनों के कहाँ पे होगा? बीच में होगा. इन दोनों के बीच में resultant होगा. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा. मैग्नीट्यूड वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट, राइट? 16 प्लस 18 प्लस 2 into 4 into 3 root 2 into cos 45 is 1 by root 2. This is my resultant under root 58. ठीक है. Now I want to calculate the direction. See now, remember, suppose this is angle phi. Suppose this is angle phi. See now, phi is from vector A. Phi is from vector A. It's not from x-axis. Remember, phi is from vector A. Now I need to calculate the direction. How I will calculate the direction? Tan phi is equal to b sine 45 upon a plus b cos 45. This 45 is this angle, figure 1, which is between A and B. Tan phi is equal to 3 root 2 into 1 by root 2 plus 4 plus 3 by root 2. How I'll calculate? 3 by 7. So my tan phi is equal to 3 by 7. Phi equal to tan inverse 3 by 7. So this is my phi equal to tan inverse 3 by 7. देखो, today I'm teaching till this point only concept. If you can understand this, it's very wonderful. Your vector is half done, more than half, if you understood this. Okay, कितनों को ये समझ में आया how I calculated magnitude and direction? Okay, formula कैसे आया? How this formula came? देखो, tan phi क्या होता है? tan phi क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे? इसको मैं साइन कॉम्पोनेंट ले लूंगा, b sin थीटा sin 45, और बेस कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? a प्लस b cos थीटा. मैंने इसको, सपोज ये मेरा a है, b को मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में स्प्लिट कर दिया. ये b sin थीटा हो गया और ये हो गया a प्लस b cos थीटा. फिर मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, tan phi इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू 45 है यहाँ पे. b a प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? b sin थीटा और बेस हो जाएगा a प्लस b cos थीटा. फिर मैंने सॉल्व कर दिया. अगर ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सत्यम आया समझ में क्या किया मैंने? ठीक है, अब हम थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा. सपोज आई टेक two vectors. Suppose this is x and this is x, both are x. Angle between them is, sorry, (90°). Can you find the angle between them is 90°? Can you find the magnitude and direction? Magnitude and direction, both are x and angle is 90°. You have to find what? Magnitude. Under root of, suppose this is a and this is b.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा and tan phi is equal to b sin theta, theta become 90 upon a plus b cos 90। ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो ये तो 90 हो जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x x cos 90, cos 90 हट जाएगा, आ जाएगा 2 रूट एक्स, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हो जाएगा b sin 90, तो x हो जाएगा अपॉन a x हो जाएगा, b cos 90 वही हो, कुछ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा ये 1 हो सर जाएगा, x√2 आएगा। सॉरी x रूट 2, दिस इज tan phi इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आ रहे समझ में, तो ठीक है, किसी को कोई डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट, अच्छा क्या क्या कंसर्न है बताओ, कैन यू, सर आपने वो tan की वैल्यू कैसे निकाली वो समझ नहीं आया। देखो tan phi क्या है, मैंने बताया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, फॉर्मूला बताया था जब दो वेक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं मेरे, पोलर फॉर्म में होते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, अब थीटा क्या है 90 डिग्री है, तो बी साइन 90 क्या हो जाएगा, बी रह जाएगा, बी तो एक्स है, अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 क्या है 0, एक्स बाय एक्स, tan phi 1 हो जाएगा, phi इक्वल टू 45, मतलब क्या, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है x√2 है और डायरेक्शन क्या है 45 है, किससे, इस वेक्टर से, ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस कॉन्सेप्ट पे वापस आऊंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वो थीटा नहीं है क्या, दिस, see this is not that theta which you are thinking in our Cartesian and polar, देखो ये x और ये y है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, देखो जब x एंड y एक्सिस होता है जब ये थीटा होता है, लेकिन इसमें क्या है, दो वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकते हैं, सपोज ये मेरा x और y एक्सिस है, देखिए मेरे दो वेक्टर्स कैसे हैं, मेरे दो वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर लाइक दिस आल्सो, सपोज ये वेक्टर a यहाँ पे आ रहा है और वेक्टर b यहाँ पे आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है, आ रहा है समझ में, तो जो मेरा 45 डिग्री आएगा वो 45 डिग्री ये है, थीटा क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, थीटा मेरा क्या होता है एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, लेकिन फाई क्या होता है, फाई फाई होता है मेरा वेक्टर से क्या एंगल बन रहा है, देखो थीटा टेल्स व्हाट इज माय एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, फाई ऑफ अ रिजल्टेंट टेल्स व्हाट इज माय एंगल फ्रॉम वेक्टर ए, आ रहा है समझ में, ठीक है, जो मैं थीटा लिख रहा हूं ये वाला थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो थीटा और ये थीटा अलग एंगल है, ये थीटा मेरा एक्स एक्स के साथ क्या एंगल बन रहा है वो है, और जो ये थीटा है जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ थीटा, जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ थीटा, जो ये थीटा लगा रहा हूँ, ये थीटा दो एंगल के बीच का है, देखो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म ऑफ वन वेक्टर, ये पोलर फॉर्म किसका, एक वेक्टर का है, जब एक वेक्टर का पोलर फॉर्म होता है तो थीटा क्या होता है मेरा, थीटा एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस होता है। जो मैं ये थीटा की बात कर रहा हूँ, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और जो फाई बता रहा हूँ मैं, फाई क्या है मेरा, रिजल्टेंट का ए से कितना है। जो मैंने 45 डिग्री आया है, ये मेरा किससे आया है, वेक्टर ए से आया है, एक्स एक्सिस से नहीं आया है। ठीक है, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, if theta is angle between two vectors, then the resultant vector is maximum when value of theta is, रिजल्टेंट टू वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, 0 पे, 90 पे, 180 पे। देखो 0 पे ज्यादा होगा, क्यों, देखो अब 90 डिग्री लोगे तो क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब 0 लोगे तो क्या होगा, r अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, r इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी। तो सपोज मेरा a होता है 3, b होता है 4, तो 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, r मेरा 5 होगा, अंडर रूट ऑफ दिस पाइथागोरस से 3 4 5। बट इस केस में जब एंगल 0 डिग्री है तो r कितना होगा, r हो जाएगा 7। तो मेरा ए केस है। तो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। When two vectors are in same direction, I get maximum resultant. Cancellation means जब दो फोर्स मेरे ऑपोजिट एक्ट करते हैं 180 डिग्री। When two forces are acting at 180 degree, when two forces are acting at 180 degree क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, मिनिमम। देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो ऐड हो रहे हैं डायरेक्ट। अब देखो सेम डायरेक्शन, ये किसका है, 0 डिग्री, 180 डिग्री में क्या होगा, 180 डिग्री में ऑपोजिट। तो सपोज ये मेरा एक्ट कर रहा है 3 न्यूटन यहाँ, 4 वैल्यू, सपोज ए मेरा 3 यहाँ एक्ट कर रहा है, बी मेरा 4 यहाँ एक्ट कर रहा है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अगर 180 डिग्री है तो ए माइनस बी हो जाएगा, 180 डिग्री है तो कहाँ हो जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। रिजल्टेंट मेरा इस तरफ 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 इन लेफ्ट साइड। 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में है, 90 डिग्री नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये पाइथागोरस। सपोज ए यहाँ पे एक्ट कर रहा है, बी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट क्या जाएगा, ऐसा चला जाएगा, बीच में, दोनों के बीच से जाएगा। मतलब सपोज आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, ये ब्लॉक है एक, 0 डिग्री क्या बता रहा है, 3 और 4 न्यूटन एक साथ लग रहे हैं एक ही जगह, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 7 न्यूटन। ये क्या है, 90 डिग्री क्या है, 3 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है। रिजल्टेंट ऐसा जाएगा बीच में, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, बीच में मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और क्या वैल्यू उसकी 5 न्यूटन है। सपोज अब 180 में क्या है, 3 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो फाइनल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा 1 न्यूटन। 180 डिग्री में मिनिमम, 0 में मैक्सिमम, 45 में बीच का। आया समझ में, कितनों को आ गया ये समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस। ये रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, कोई पूछ रहा है रिजल्टेंट कैसे निकलेंगे, ये एंगल, एंगल कैसे निकल जाएगा, tan phi इक्वल टू, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, phi इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन अथर आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई विल कम टू दैट पॉइंट। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो।
बी बी वेक्टर आर है किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होता है आर कॉस थीटा, वाई कॉम्पोनेंट क्या होता है आर साइन थीटा, राइट। ये कौन सा फॉर्म है मेरा, ये मेरा पोलर फॉर्म है। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ इसको, कार्टेशियन से। और देखो आर कॉस थीटा पे मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, राइट। तो थीटा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होना चाहिए 0, कॉस थीटा 1 होगा, और थीटा क्या होगा इसके लिए 0 होगा। एक्स इक्वल टू आर जब भी हो पाएगा जब थीटा 0 है। थीटा 0 मतलब क्या, आर एक्स एक्सिस के साथ चल रहा है, ठीक है। बी, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वेक्टर ए दिया है मुझे, ए एक्स एंड ए वाई मतलब क्या, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड वेक्टर दी दिया है, बी दिया है मुझे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। देन मैच द कॉलम, देन द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सम ए प्लस बी। ठीक है, वेक्टर सम ए प्लस बी क्या होगा, करो। व्हाट विल बी वेक्टर सम ए प्लस बी, ये कौन से फॉर्म है, कार्टेशियन है ना। कार्टेशियन फॉर्म मतलब डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 6i प्लस 8j, ठीक है। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट 10। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कार्टेशियन से क्या कर रहा हूँ, पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वेरी गुड। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर ए माइनस बी, ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, -2i -2j, 2 - 4 -2, 3 - 5 -2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 टू रूट, राइट, वेरी गुड। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सम ए प्लस बी, कंपोनेंट मतलब क्या, इन दो में से कोई एक, ये एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, इफ यू केयरफुली सी हियर वाई कंपोनेंट इज रिटन, तो ए का 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है, -2i -2j, देखो मेरा इको सेकंड दिया है, बी का सेकंड हो जाएगा, एंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, 2√2 है, 3 हो जाएगा। A1 B4 C2 D3। कितनों को समझ में आ रहा है ये, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग। चलो ठीक है, 6i प्लस 8j कैसे हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना, वेक्टर सम, वेक्टर सम में क्या होता है, ये कार्टेशियन में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 2 + 4 6 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। ठीक है, कल्पना आया समझ में, वैसे सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस कर देंगे।
चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस वन। डी, तो ठीक है, a प्लस बी बाई 2, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अब देखो ये आपको पता नहीं होगा, ये क्या मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है मेरा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके आंसर स्केलर आता है, इसको मैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलता हूँ। आई टीच दिस, ये आपको मैंने एक हिंट देने के लिए रखा था क्वेश्चन, एटलीस्ट आंसर तो आ गया है आपका, लेकिन दिस इज माय डॉट प्रोडक्ट, दिस इज माय क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, आई जस्ट सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? कैन यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन? आप में से कोई है जो पुणे में नहीं है? Is there anyone who is not in Pune, who is attending class from home or somewhere outside Pune? सी, ए, बी, सारे ऑप्शन आ गए। अभिषेक, कहाँ पे हो अभिषेक आप? घर कहाँ पे? मैं ये बोल रहा हूँ जो पुणे में नहीं है, एनी वन ऑफ यू इज नॉट इन पुणे, जो घर चला गया कोरोना की वजह से, घर में ही है, ऐसा कोई नहीं? अच्छा देश कहाँ पे हो वैष्णवी आप? ओके अकलौज में। चलो, देखो इंटरनेट का ही फायदा होता है। आई एम इन दिल्ली। अच्छा, गुड, तो ठीक है। आई एम इन दिल्ली, वेरी हॉट हियर। फॉर विच एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल है। For which angle between two equal vectors A and B will the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of each other? अभी देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, वेक्टर ए है मेरा, मुझे वेक्टर सी निकालना है, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड, मेरा ए का मैग्नीट्यूड भी एक्स होगा, सी का भी एक्स होगा, बी का भी एक्स होगा, सपोज, बिकॉज क्या दिया है, फॉर विच एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल द मैग्नीट्यूड ऑफ, इक्वल वेक्टर दिया पहले तो, will the magnitude of sum of two vectors be equal to magnitude of each vector? ठीक है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, c इक्वल टू अंडर रूट, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। c क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं देखो, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा।
एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा -1/2। इसको इधर ले जाऊंगा एक्स स्क्वायर काट दूंगा, थीटा क्या हो जाएगा मेरा -1/2 मतलब 120 डिग्री भी हो गया। कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? अथर कहाँ से समझ नहीं आया? अथर क्या समझ नहीं आया बताओ? मैग्नीट्यूड देखो, जब भी दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल थीटा होता है। तो कोई वेक्टर ए है वेक्टर बी है, उसका एंगल थीटा है, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a magnitude b magnitude into cos theta where theta is angle between these two vectors। ठीक है, अब देखो, अब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्वेश्चन में, तो मैंने तीनों का मैग्नीट्यूड x अज्यूम कर लिया। देखो तो एंगल बिटवीन फॉर विच एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू इक्वल वेक्टर्स, तो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड x ले लिया। विल द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच अदर, मतलब जो सम है उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इसको मैंने x ले लिया, पुट कर दिया, थीटा आ जाएगा -1/2 cos थीटा, थीटा 120 हो गया। मतलब जो ये मेरा एंगल है दो वेक्टर के बीच का, अगर ये 120 होगा, आगे समझे? चलो गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। स्टूडेंट मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ज्वाइन कर लेना, ओके? प्लीज ज्वाइन अगेन। जैसे मीटिंग खत्म क्लोज होती है यू ज्वाइन अगेन, ओके? चलो ये क्वेश्चन करो। Vector A can be written in terms of component as ax, ay, az. When will vector A be 0? When will vector A be 0? देखो, जब कोई वेक्टर x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट z के टर्म्स में लिखते हैं, देखो जब भी कोई वेक्टर को मैं x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट और z के टर्म्स में लिखते हैं, सपोज ये मेरा वेक्टर है, देखो ये वेक्टर जब भी 0 होगा तब तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे। जब तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, याद रखना, सी सही है। देखो एक्स वाई जेड आपकी दीवार के कोने की तरह, आप दीवार का एक कोना ले लो, उसमें क्या है एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट है, जेड कॉम्पोनेंट। मैंने आपको जेड कॉम्पोनेंट पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो, जैसे दीवार है आपका, घर है, छत है, 3D है, राइट? इसका कोई कोना ले लो, एक कोना इसका, जैसे आपका क्यूब है, ठीक है? अब देखो इसका ये एक कोना ले लो, ये अगर एक्स ले लेते हो, ये वाई ले लेते हो, तो ये जेड हो जाएगा, 3 कोने। तो वेक्टर क्या है? कुछ वेक्टर्स जब आपके प्लेन में होते हैं, आपका इस प्लेन में होगा तो वेक्टर सिर्फ एक्स वाई के पार्ट में डिवाइड होगा, जो अभी हम पढ़ रहे थे। लेकिन अगर इन केस आपका वेक्टर ऐसे हवा में निकला है, तो एक्स वाई जेड तीनों में ब्रेक होता है। लेकिन चाहे वेक्टर दो पार्ट में ही ब्रेक हो, मतलब एक्स वाई प्लेन में हो, या वेक्टर तीनों पार्ट में ब्रेक हो, वेक्टर जब भी 0 होगा जब वो इंडिविजुअली उसके सारे कॉम्पोनेंट 0 होंगे। मतलब क्या? ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों 0 होंगे, तभी वेक्टर मेरा 0 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। ऊपर वाला मत करो अभी, ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई नहीं आपको। ट्राई दिस बिलो वन, ये वाला क्वेश्चन था। ओके, पिछला क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऑल अंडरस्टूड? चलो, किसी को डाउट?
इसमें कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मीटिंग इज अबाउट टू एंड. यू कैन अगेन ज्वाइन. आई एम क्लोजिंग इट. ओके, आई स्टार्ट अगेन, यू अगेन ज्वाइन.